जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. Now, a complaint was filed by BJP leader Nazia Ilahi Khan against former Chief Minister Mamta Banerjee, TMC MLA Javed Ahmed Khan, and the president of the Muslim Khilafat Committee at Pragati Maidan Police Station. The complaint alleges that they violated Quranic rules, engaged in communal intimidation, and misused Red Road for offering namaz. We have Nazia Ilahi Khan herself joining us live. Nazia Ilahi Khan is of course a BJP leader. Nazia, welcome. And क्या आप बता सकती हैं कि इस घटना में क्या हुआ है एग्जैक्टली आपके आरोप क्या है? सबसे पहले तो वंदे मातरम, जय मां काली. Since 2012 to 2025, the former Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has completely disobeyed, and she had completely against with Islam and Quran. Because when the Ummah, when the Mu'min will do recitation, ibadat and namaz, no one can come between the Allah and the Mu'min. The second thing is, the Red Road is the area of cantonment. How can Javed Ahmed Khan had continuously arranged the prayer namaz on that particular area? It's a cantonment area. It's an army area. How he misused each and every year since 2012 to 2025, Mamata Banerjee has taken revenge and political vendetta through the Eid ki namaz. How? This is completely obnoxious and not acceptable in the eye of law, in the eye of constitution, as well as in the eye of Quran, in the eye of Islam, in the eye of Sharia. So I had filed a complaint letter against her, Javed Ahmed Khan, and the Muslim Khilafat Committee. Nazia, now your complaint also mentions communal intimidation. What actions or statements in your view constitute intimidation? She always provoked Muslims on that particular moment. She always trying to create communal intimidation through her speech. She always outbursts her political vendetta and political agenda. She always trying to mislead and misguide Muslims against Hindus. She always create discrimination between Hindus and Muslims in West Bengal. She always trying to convince Muslims that Hindus are not good for them. She always trying to convince the West Bengal Muslim that Bharatiya Janata Party, central government are not good for the Muslims of West Bengal. So she always trying to communal intimidation to Muslims. And now we can see now the illegal construction are demolished, the sex racket are outburst. The Jharkhand police came from the Jharkhand to Banyapukur to arrest the Muhammad and Aisha in section of sex racket, in crime of sex racket. What is this? She misled the Muslims of West Bengal. She misunderstood the Muslims of West Bengal. Whatever she had done, it's not flabbergasted for me, because I have read proper Quran. I know about the proper Islam. And since 2019 to 2025, I have filed public interest litigation to the Honorable Calcutta High Court to ban her speech during namaz, to ban her visit during Eid ki namaz. But no one want to listen on that particular moment. Now I am trying to arrest her appropriately according to law. Nazia, I'll come back to your allegations, but I want to also ask you, what do you make of Bakri Eid open cow slaughter restrictions put by Suvendu Adhikari, and do you think Bakri Eid was peaceful this time around? It's very clear, crystal clear. जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत देने के लिए इस देश के सभी लोगों को इज्जत देना है, तब उस वक्त तो कोई घोषणा किसी सरकार ने नहीं की थी. तो गौमाता 120 करोड़ हिंदू, इस देश की सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदूज जो है वो गौमाता की पूजा करते हैं. इसके लिए
घोषणा करने की सरकार को जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपको सबको, सारे धर्म के देवी देवताओं को, गॉड गॉडेस को आपको रिस्पेक्ट देना है। और ये बात फरहाद हकीम को, ममता बनर्जी को, प्रियदर्शनी हकीम को और सारे मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि गौ माता पूजनीय है, गौ माता धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है हिंदुओं के लिए, इसलिए संविधान के तौर पर आपको उनको वैसे ही रिस्पेक्ट देना है जैसे मुसलमान पैगंबर मोहम्मद को रिस्पेक्ट देते हैं। नाज़िया, मुझे आपसे ये भी समझना है कि आपकी ये की पार्ट, आपकी कंप्लेंट कंसर्न्स जो रेड रोड का यूज़ है ऑफरिंग नमाज के लिए, तो आप इसको क्यों कंसिडर करते हैं कि ये एक इशू ऑफ पब्लिक कंसर्न है? थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, रोड तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, रोड पब्लिक के लिए है। और इस बार देखिए 107 साल के बाद खुले में कुर्बानी नहीं हुई है। गौ माता को काट करके कबाब खाने वालों ने पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है कि 14 साल से कम का होना चाहिए या 14 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ उन्होंने कम से कम एक चेष्टा तो किया, एक परिश्रम तो किया कि हाँ, हमको कानून के हिसाब से चलना है। 107 साल के बाद हमें बकरीद, ईद उल अजहा के दिन रोड पर और गलियों में और बाजारों में और मोहल्लों में और अपार्टमेंट में हमें ब्लड शेड नहीं दिखाई दिया है। हमारे पैर के नीचे और चप्पलों के नीचे मासूम जानवरों के ब्लड नहीं आए हैं। तो शुभेंदु अधिकारी जी ने इस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर जो काम किया है वो 107 साल ये काम कोई नहीं कर पाया, ना ही कांग्रेस की सरकार, ना ही लेफ्ट फ्रंट की सरकार, ना ही ममता की सरकार। लॉ एंड ऑर्डर कैसे 15 दिन में इंप्लीमेंट किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे 15 दिन में बनवाया जाता है, मुझे लगता है कि इसके एक बहुत ही एपिटोम और क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल हो चुके हैं शुभेंदु अधिकारी दादा एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। नाज़िया, आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपकी कंप्लेंट के बाद पुलिस से आप क्या एक्शन सीख कर रही हैं और क्या आपको कोई रिस्पांस या एक्नॉलेजमेंट मिला है? एग्जैक्टली मैं 4:30 बजे 5 बजे के करीब मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, जहाँ पर मेरा एक सिग्नेचर लगेगा। वो सिग्नेचर देने के बाद मैं FIR कलेक्ट करूंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ममता बनर्जी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हैं वो अरेस्ट हों, क्योंकि जिस तरीके का हिंदू मुस्लिम विवाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में पैदा किया है और जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को का पालन पोषण करने के लिए वो संवैधानिक मुसलमानों को भी हिंदुओं के खिलाफ की हैं, ये बात खुल करके सबके सामने आनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। उनको जेल कस्टडी होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। और जावेद अहमद खान को भी अरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज वो तो मुसलमान है, उन्होंने तो कुरान पढ़ा है, उन्होंने तो हदीसें पढ़ी हैं, उन्होंने तो शरिया भी पढ़ा है। तो जब वो मुसलमान हो करके वो कुरान के खिलाफ चले गए, हदीस के खिलाफ चले गए, शरिया के खिलाफ चले गए, एक मेल गैदरिंग में उन्होंने एक फीमेल को बुला करके हेट्रेट स्पीच दिला दिया। उन्होंने मोमिन और अल्लाह के बीच में जो एक मोहब्बत होती है ईद की नमाज के वक्त, जो एक परहेजगारी होती है, जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो सबको उन्होंने इग्नोर करके जावेद अहमद खान ने सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल रिवेंज और हिंदू मुसलमान के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने का उन्होंने अड्डा बना दिया था। उन्होंने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना दिया था। इबादत की जगह को, रिसाइटेशन की जगह को, नमाज जैसी इबादत की जगह को। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी साहिबा और जावेद अहमद खान दोनों को जेल जाने की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया नाज़िया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड व्यूअर्स, दिस वाज अ न्यूज़ एक्स एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन विद नाज़िया इलाही खान. And with that, it's time for a short commercial break. We'll see you on the other side.